Thank you so much for giving me the floor. Basically, we are comparing apples and oranges. So while Dr. Saab, डॉक्टर हसनैन का पर्सपेक्टिव और है और डॉक्टर इश्तियाक का और है बिकॉज कॉन्टेक्स्ट और है. If we bring the two discussions into the current debate, then perhaps we can find some solutions. I respect what Dr. Ishtiaq says. As a diplomat, I would say we should always have positive approach towards all nations, all people. That's what Qaid-e-Azam's guidelines to our foreign policy were: friendship towards all, animosity towards none. That was a one sentence summary of how Qaid-e-Azam looked at it, and we have pursued that foreign policy. Uh, आप अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है जिसमें देयर नो स्केलेटन्स इन द क्लोजेट. Whether True. it's Christian civilization or it's Muslim civilization or it's Jewish civilization or it's Hindu civilization, everybody has some skeletons in the closet. So let's not pull the skeletons out, but respect each other. कि ठीक है. Basically, Dr. Isiaq, with your research on these things, I would seek your guidance on this. My take is that human civilization में जो बड़ी तहजीबें थीं वो इंटरैक्ट करती थी. इट वाज मोर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड देन इट इज नाउ. जब इब्न बतूता सारी दुनिया घूमते थे, जब उस वक्त सारे स्कॉलर्स जो हैं विदाउट वीजा विदाउट डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर जाते थे, कहवे खानों में सिल्क रूट पे बैठते थे, सरायों में वो गुफ्तगू करते थे, इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन होती थी, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट थी, टॉलरेंस थी. फिर उसके बाद आपने जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो कि पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है, आपने सिविलाइजेशंस को काट के तो वो बाउंड्रीज बनाई जिनमें दे इन्फेस्टेड प्रॉब्लम्स में ऐसे ही थे. जैसे रेड इंडियन को चिकन पॉक्स वाले ब्लैंकेट्स दिए गए, इसी तरह जो नेशन स्टेट्स बनी उनकी बाउंड्रीज में उन्होंने दे इन्फेस्टेड ऑल द प्रॉब्लम्स. Consequently, the civilizations that uh, were divided. And आप देखिए अब आपके subconscious mind में there is a Farghana Valley. There is that great civilization, the great Farghana Valley. On the ground, does it exist? No, but it exists in the hearts of the people. So there are many concepts in our civilizational psyche that bind us together. And similarly, there are historical experiences that create that suspicion among different civilizations because of their historic experiences. वरना आप देखिए कि ईरान और तुर्की की आप सिविलाइजेशंस देख लें, भाई थे दो. एक ने जो है वो पर्शिया पकड़ लिया, दूसरे ने जो है वो ऑटोमन करके, और वो सिबलिंग राइवलरी ने उसको सेक्टेरियन राइवलरी बना दिया. और इस तरह से वो आगे तहजीबें जो हैं वो कन्फ्लिक्चुअल हो गई. जहां तक हिंदू की बात है या जूस की बात है, नॉट ऑल जूस आर बैड, नॉट ऑल हिंदूज आर बैड, बट जो आपका सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस है उसमें आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक तो बैठे और फिर पॉलिटिकल एजेंडाज ने उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मजीद इंटेंसिफाई किया फॉर पॉलिटिकल रीजंस. व्हाट इज हिंदुत्व? व्हाट इज अखंड भारत? देयर इज नो सच थिंग, but it's a political agenda that has been brought to fore to divide not only our region but within India also. It's imploding. Because Hindustan was always a conglomeration of fiefdoms, princedoms, statedoms. Each had its own identity, each had its own culture, each had its own language, each had its own cuisine,
each had its own embroideries. इस हद तक हम डिस्टिंक्ट थे, पर एक ही लैंडस्केप में रहते थे, इंटरैक्ट करते थे, कभी प्यार से, कभी जंगों से, और इस तरह से हमारी सिविलाइजेशंस इवॉल्व हुई। लेकिन जब आपने ये एंटिटीज बनाई, नेशन स्टेट्स बनाई, तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनमें इंटरलॉक हो गए। और वो फिर आप अभी मतलब I great love for Dr. Hasnain. He's a very smart man, and he is talking from a context that belongs to this interlocking of Yes. historical social psyches, Yes. how they have evolved. Thank you for But making it having clear. said that, we have to work together. डॉक्टर इश्तियाक ने जो बात की कि ह्यूमैनिटी की तरफ हमें जाना चाहिए, एज ह्यूमन बीइंग हमें जाना चाहिए, पर whenever you move forward, you have to bear in mind कि where you have had historical experiences which are negative, how can you cross those bridges with more pacific way. आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की भी डिस्कशन हुई, आपकी न्यूक्लियर के ऊपर भी आपकी एग्रीमेंट है जो आप शेयर करते हैं एक दूसरे से। Despite you have no compulsory dialogue, we still share information because that is our understanding. कि हम जब भी कोई डेवलपमेंट इस फील्ड में होती है हम एक दूसरे को बताते हैं। जो पहलगाम में सीज फायर हुआ, इंडियंस क्लेम कि वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने किया, बिकॉज डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैव आल्सो बीन वर्किंग टुगेदर सिंस वेरी लॉन्ग. So they use that platform. They don't want to give credit to Mr. Trump. We do, because it is true that when Trump said कि ceasefire हो गया था. So let's keep things, as I said, in their context. Please, Dr. Saab, I won't take more of your time. Thank you. बहुत अच्छा किया मैडम आपने, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट डॉक्टर I want to express my heartfelt आई वांट टू शेयर अ thanks थॉट to मैडम ने वही बात की है जो विजडम है। डॉक्टर साहब लेट मी शेयर अ थॉट विद यू डॉक्टर हसनैन साहब, आपके सामने भी कर रहा हूँ। देखिए ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जो हमारे सामने इस वक्त पिक्चर है, इसके पीछे डीप फिलोसफीज और डीप हिस्ट्रीज एट वर्क हैं। मैं तीन चीजें आपके सामने अर्ज करता हूँ सर। मार्को रूबियो साहब का 2-3 दिन पुराना एक क्लिप मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स आर वेटिंग फॉर इमाम मेहदी, और इनका एक फ्यूचरिस्टिक विजन है जिसमें आर्मागेडन है, और ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज्यूज हैं, ज़ायनिस्ट हैं, जो प्रॉमिस्ड लैंड जो 3000 साल पहले उन्हें प्रॉमिस की गई थी वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। 3000 साल पहले कहीं इनका जो है वजूद नहीं था, ये बिब्लिकल वर्जन के अंदर कहीं नहीं लिखा। मैं उनकी सोच की बात कर रहा हूँ। It was not the promised land. मैं हकीकत है कि नहीं है, इमाम मेहदी का भी कोई इंतजार नहीं कर रहा। नहीं, इमाम मेहदी का मुकम्मल अहादीस के अंदर इसका जिक्र है। कितने लोगों ने मेहदी को क्लेम किया है, तो उनको पकड़ के Allow me to finish the statement. 72 फितने आने थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 72 फितने आएंगे, तो वो आएंगे ना, फितने तो आते रहेंगे। स्टेटमेंट तो फिनिश करने देना सर, स्टेटमेंट फिनिश करने दें। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इनमें हकीकत है नहीं है, ये एक्यूरेट है इनएक्यूरेट है, दैट्स नॉट द डिबेट। जो जहनों में इस वक्त है और जिस तरह से चीजें चल रही हैं हम उसको देखें। किसी का क्या बिलीफ है, वो एक्यूरेट है नहीं है, दैट्स अनदर सब्जेक्ट। ठीक है, एक तरफ वो इमाम मेहदी का जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ अखंड भारत जो कि जिसके अंदर एक हिंदू फिलॉसफी है, दूसरी तरफ इमाम ये प्रॉमिस्ड लैंड है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि तीनों साइड पे एक डीप फिलॉसफीज चल रही हैं, वो उनकी एक्यूरेसी है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट एवरी तो उसको। सो व्हाट आई एम सेइंग कि थिंग्स आर नॉट सो सिंपल। ये नहीं कि खाली ट्रेड रिलेशंस चल रहे हैं, खाली ये है कि कल्चरल टाइज हैं, देयर आर डीप रिलीजियस फिलॉसफीज एट वर्क इन ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट। मेरी एक मिनट की बात सुन के डॉक्टर इश्तियाक फिर आप गुफ्तगू फरमाइएगा। सर मैं थोड़ी सी बात
जी सर मेरा इसी मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट ये था तरीके से कि कितने मैडम ने सम अप किया है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बट फ्रॉम दिस एंगल के जो डॉक्टर हसनैन जावेद ने इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, आई हैड टू काउंटर हिम विद नहीं, काउंटर फैक्ट। वरना मैंने इसीलिए मेरी आपके सोच सामने रखा कि मेरी डॉक्टर हसनैन जावेद सब जो पोजीशन ले रहे हैं उसकी एक वजह है, यार और वो वजह समझ ये आ है। गई, मुझे बात तो करने जी दो। हाँ, जी जी मैं मान गया हूँ कि वजह होगी और हो है भी इस जमाने में, इस वक्त में यूं। लेकिन मैडम ने जिस तरीके से बात की है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन सेइंग ऑल माय लाइफ। ये दुख दर्द की कहानी हर जगह चलती है, घरों के अंदर चलती है। हाँ जी, प्रॉपर्टी के लेने के तो, ऊपर एक दूसरे को तो, कत्ल कर देते हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप, हैं? लड़कियों तो, के साथ तो जो द होता है मुझे सब कॉन्फ्लिक्ट, पता है। हाँ जी, सो लेट्स नॉट रोमांटिसाइज दिस। और ये जो डाइकोटमीज बनाते हैं ना, एक्चुअली दिस इज अनहिस्टोरिकल, ए हिस्टोरिकल, ऐसे कभी हुआ नहीं।